ناظرین السلام علیکم۔ سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں پر۔ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا صفایا، بی جے پی کامیاب۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کا حیرت انگیز مظاہرہ۔ کانگریس کے لیے نتائج مایوس کن، مناسب وقت پر وزیر اعظم کے امیدوار کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ ریاست کی تقسیم پر سپریم کورٹ سے مشورہ لینے کی ضرورت، صدر جمہوریہ کو چندرا بابو نائیڈو کا مکتوب۔ اور جیڈی میٹلا کی کیمیکل فیکٹری میں بھیانک آتش زدگی، کروڑوں روپے کا نقصان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ لوک سبھا انتخابات سے عین قبل بی جے پی نے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو 4-0 سے شکست دے دی اور راجستھان پر قبضہ کرتے ہوئے مدھیہ پردیش میں اقتدار کو برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ میں بھی اسے اقتدار حاصل ہوا ہے اور دہلی میں وہ تشکیل حکومت کے قریب پہنچ چکی ہے، جہاں عام آدمی پارٹی نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو بوکھلاہٹ کا شکار بنا دیا ہے اور پارٹی سربراہ اروند کیجریوال سب سے زیادہ کامیاب بن کر ابھرے، جنہوں نے 3 مرتبہ چیف منسٹر رہنے والی شیلا ڈکشت کو بڑے فرق سے شکست دے دی۔ عام آدمی پارٹی کے شاندار مظاہرے نے دہلی میں کانگریس کا صفایا کر دیا، لیکن بی جے پی کو بھی اس نے واضح اکثریت حاصل کرنے سے روک دیا۔ بی جے پی دہلی میں 31 نشستوں کے ساتھ واحد سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہے۔ 70 نشستیں اسمبلی میں، اسے اکثریت کے لیے مزید 5 ارکان کی تائید درکار ہے۔ عام آدمی پارٹی نے 28 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ کانگریس کو صرف 8 پر کامیابی ملی۔ بی جے پی کی حلیف اکالی دل کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ وزارت عظمیٰ امیدوار نریندر مودی کی جارحانہ مہم کے ذریعے بی جے پی نے راجستھان میں کانگریس سے اقتدار چھین لیا اور اسے 3/4 اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے اپنا اقتدار برقرار رکھا اور یہاں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے لیے یہ ہیٹرک رہی، جہاں چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پارٹی نے 230 رکنی اسمبلی میں 165 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس طرح اسے گزشتہ انتخابات کے مقابلے 22 زائد نشستوں پر کامیابی ملی۔ کانگریس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اور اسے سابقہ 71 کے مقابلے صرف 58 نشستوں پر کامیابی ملی۔ بی ایس پی نے 4 اور آزاد ارکان نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ راجستھان میں وسندھرا راجے کی قیادت میں بی جے پی نے کانگریس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ 200 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کو 162 نشستوں پر کامیابی ہوئی، جبکہ کانگریس صرف 21 نشستوں پر کامیاب رہی۔ حالانکہ اس سے پہلے بی جے پی ارکان کی تعداد 78 تھی، جبکہ کانگریس کے پاس 96 نشستیں تھیں۔ چھتیس گڑھ میں مقابلہ اگرچہ سخت رہا، لیکن برسر اقتدار بی جے پی نے 49 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی اور چیف منسٹر رمن سنگھ نے بھی ہیٹرک بنائی۔ 90 رکنی ایوان میں کانگریس کو 39 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ کانگریس نے مدھیہ پردیش، راجستھان اور دہلی میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ عوام کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے عہد کر لیا کہ 2014 لوک سبھا انتخابات سے قبل پارٹی مناسب وقت پر اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کرے گی۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے کہا کہ 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے نتائج پر پارٹی بے حد مایوس ہے۔ اس کے سخت محاسبے کی ضرورت ہے۔ سونیا گاندھی اور ان کے فرزند راہل نے، جو پارٹی کے نائب صدر ہیں، کانگریس ہیڈ کوارٹرز پر اتوار کی شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ سونیا نے کہا، یقیناً عوام خوش نہیں ہیں، ورنہ وہ یہ نتیجہ نہ دیتے۔ انہوں نے شکست کے اسباب کا سرسری تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں مہنگائی اور مختلف مسائل شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اسمبلی انتخابات کے نتائج لوک سبھا انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پراعتماد لہجے میں کہا کہ ریاستی انتخابات میں عوام نے ریاستی سطح کی شخصیت پر توجہ مرکوز کی جو ان کی قیادت کر سکتے ہیں۔ عام انتخابات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس وقت عوام یہ دیکھیں گے کہ قومی سطح پر کون ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اور حکمرانی کا اہل کون ہے۔
ये पूछने पर कि क्या अब बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के ऐलान का वक्त आ गया है, सोनिया गांधी ने कहा कि अवाम को तशवीश की ज़रूरत नहीं, मुनासिब वक्त पर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो राहुल गांधी होंगे तो पहले तो वो झिझके, फिर कहा इसका फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मशहूर आम आदमी पार्टी ने तश्कील हुकूमत के लिए किसी भी सियासी पार्टी से तायद हासिल करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हामियों और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इनकी पार्टी असेंबली में तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। केजरीवाल ने 3 मियाद से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज शीला दीक्षित को 25,000 से जायद वोटों से शिकस्त दे दी है। उन्होंने नतायज को तारीखी करार दिया और कहा कि अवाम निकल आए हैं और एक साफ सुथरी और ईमानदार सियासी जमात को वोट दिया है, इसलिए ये नतायज तारीखी हैसियत रखते हैं। यह आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि अवाम की कामयाबी है। ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बनने वाले 45 साल केजरीवाल ने हामियों की तालियों की गूंज में कहा, हम तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और हुकूमत बनाने किसी पार्टी से तायद तलब नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे की क़यादत में सिविल सोसाइटी तहरीक से 1 साल कबल ही सियासी जमात में तब्दील हुई और हैरत अंगेज तौर पर कौमी सियासत के मरकज दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 2 कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि नतायज कांग्रेस और बीजेपी जैसी मुस्तहकिम सियासी जमातों के लिए एक पैगाम है कि इन्हें अपनी सियासत का तरीक़ेकार बदलना होगा। अगर उन्होंने तब्दीली नहीं लाई तो अवाम उन्हें उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली की वजीर दाखिला शीला दीक्षित ने दिल्ली में कांग्रेस के हाथ से इख्तिदार निकल जाने और खुद अपनी नशिस्त बचाने में नाकामी के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पार्टी इंतखाबात में होने वाली कोताहियों का जायजा लेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को अपना मकतूब इस्तीफा भेजने के बाद रिहाइशगाह के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए दीक्षित ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने जो फैसला दिया है इसका हम एहतराम करते हैं और गुज़िश्ता 15 बरसों तक पार्टी की तायद करते रहने पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास 12 दिसंबर को 10 बजे दिन से शुरू होगा। चूंकि जारिया साल जून में रियासती मुकन्नना के जो इजलास मुनक्किद हुए थे, इसके इल्तिवा के लिए गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन की जानिब से कोई आलमिया ताहाल जारी नहीं किया गया है। इसलिए 12 दिसंबर से तलब किए जाने वाले इजलास के लिए गवर्नर की जानिब से कोई आलमिया जारी नहीं किया गया। अलबत्ता हुकूमत की दरख्वास्त पर स्पीकर असेंबली और सदरनशीन कौंसिल के दफातर की जानिब से इजलासों की तलबी से मुतालिक आलमिया सेक्रेटरी मुकन्नना के जरिए आज जारी किया गया। रियासती मुकन्नना के इस इजलास में जो सरमा इजलास करार दिया गया है, इसको काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है, क्योंकि इस इजलास में रियासत की तंजीम जदीद से मुतालिक बिल पर अरकान की राय हासिल की जाएगी। 5 दिसंबर को तेलंगाना बिल की मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसे सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया गया। तौक़े है कि इस बिल को सदर जमहूरिया 9 दिसंबर को रियासती असेंबली रवाना करेंगे, चूँकि रियासती असेंबली के इजलास की तलबी का हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया था। इसलिए मुल्क के दस्तूरी सरबराह की हैसियत से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से तेलंगाना पर जो रेफरेंस रवाना किया जा रहा है, इस पर असेंबली को बहस करना होगा। असेंबली सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से भेजे जाने वाले तेलंगाना से मुतालिक रेफरेंस के लिए राय देने कितना वक्त लेगी, इस बात का इन्हिसार सदर जमहूरिया की जानिब से दी जाने वाली वक्त की मोहलत पर होगा। बीजेपी ने दावा किया कि मुल्क से कांग्रेस पार्टी के सफाये का वक्त आ चुका है। बीजेपी के सीनियर लीडर एन वेंकैया नायडू ने 4 रियासती असेंबलियों के इंतखाबात में अपनी पार्टी की शानदार कामयाबियों पर मनाए जाने वाले जश्न के दौरान मीडिया नुमाइंदों से कहा कि ये इंतखाबी नतायज इस बात का इशारा है कि अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी के मुखालिफ हैं और वो बीजेपी को एक मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बेहतर हुक्मरानी और तरक्याती स्कीमात को अवाम ने कबूल किया है,
जबकि राजस्थान के अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार हो चुके थे, जिसको उन्होंने बेदखल कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी में बाज़ नक़ाइस का एतराफ़ किया। वेंकैया नायडू ने ताहम ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में हुए नक्सलाइट हमले में अपने चंद कायदीन की हलाकतों के सबब कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तरक्की व भलाई के प्रोग्राम को अवाम कबूल किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि दिल्ली में मुखालिफ कांग्रेस वोट आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर 3 मरतबा फायद रहने वाली कांग्रेस रहनुमा शीला दीक्षित को शिकस्त दी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सारे मुल्क में मुखालिफ कांग्रेस लहर चल रही है और बीजेपी को वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए नामजद अपने उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुहिम से भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को बआसानी कामयाबी हासिल होगी और नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकज पर इल्जाम आयद किया कि इसने रिवायात को मलहूज रखे बगैर गैर जिम्मेदारान अंदाज में आंध्र प्रदेश की तकसीम का फैसला किया है। चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया से मुतालबा किया कि वो इस ज़िमन में तमाम हसास मसाइल का जायजा लें और इन मसाइल को सुप्रीम कोर्ट से इसके मशवरे के लिए रुजू करें। चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया के नाम रवाना करदा अपने मकतूब में कहा कि आंध्र प्रदेश रियासती तंजीम जदीद बिल के मसूदे की तैयारी में मरकज़ ने तमाम मुतालिका फ़रीक़ीन को एतमाद में लिए बगैर मसूदे की तैयारी में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक ख़तरनाक मिसाल कायम की है, जिससे इलाक़ों के माबीन मुख्तलिफ मसाइल पैदा होंगे और इस अंदाज में तैयार करदा बिल पर अमलावरी की सूरत में रियासत के अवाम के माबीन मुनाफरत पैदा होगी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मकतूब में मज़ीद कहा कि आपको सख्त अफसोस के साथ मुतला कर रहा हूँ कि तंजीम जदीद के मसूदे में अक्सर दिफात गैर दस्तूरी और नाकाबिले अमल है। तक़सीम के लिए आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली की करारदाद की मंजूरी की अहमियत व ज़रूरत को उजागर करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ ने जो रिवायात को मलहूज रखे बगैर इंतहाई जल्दबाजी और इजलत पसंदी में तंजीमी जदीद का मसूदा तैयार किया है और गैर मामूली इजलत के साथ इसको सदर जमहूरिया के दफ्तर से रुजू कर दिया। तेलंगाना इलाके के अरकान पार्लिमान कांग्रेस पार्टी ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के तर्ज अमल की पुरजोर मुखालिफत की और इस तर्ज अमल को कांग्रेस पार्टी के लिए ही इंतहाई नुकसानदेह करार दिया और कहा कि रियासती असम्बली में तेलंगाना बिल को मंजूर ना होने देने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का ऐलान न सिर्फ इंतहाई तकलीफदेह ही नहीं बल्कि बिल्कुल तौर पर बदबख्ताना बात है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहते हुए इस तरह के ऐलानात और बयान देना खुद किरण कुमार रेड्डी की रायलसीमा जहनियत की अक्कासी के सिवा और कुछ नहीं है। पूनम प्रभाकर और आनंद भास्कर अरकान पार्लिमान ने ये बात कही और बताया कि ऐसा दिखाई देता है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी दस्तूर से वाकिफ नहीं है और ये साबित हो चुका है कि किरण को दस्तूर के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं है। इन अरकान पार्लिमान ने चीफ मिनिस्टर को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना के मसले पर अपना मुखालिफाना रवैया रखते हुए कांग्रेस हाईकमान के फैसले की मुखालिफत करना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इन्हें हरगिज जेब नहीं देगा। जडीमटला के एक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में गोदाम में रखा हुआ कई टन केमिकल जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। महकमा आतिशफ़रोग़ को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके फौरी बाद 5 फायर ब्रिगेड्स ने तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग के शोलों पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। आग लगने के बाद मुकामी अवाम और अतराफ की फैक्ट्रीज के वर्कर्स में सनसनी फैल गई। जडीमटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आग लगने की वजूहात की तहकीकात का आगाज कर दिया। कुतबुल्लापुर के एमएलए श्री सैलम गौड़ और कॉरपोरेटर सुरेश रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया। एडिशनल फायर ऑफिसर प्रभाकर रेड्डी, रीजनल ऑफिसर जीवी नारायण राव, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर नागार्जुना रेड्डी, सुधाकर रेड्डी की निगरानी में कोकटपल्ली, सनत नगर, जडीमटला, माधापुर, सिकंदराबाद, मौलाली के फायर इंजनों के मदद से आग को बुझाने में मदद ली गई। इस किस्म के वाक़यात के तदारुक के लिए मुकामी एमएलए ने मुतालिका हुक्काम से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।